Amen. आमेन। I'm just here saying, Holy Spirit, do what you want to do. मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर कि पवित्र आत्मा जो आप करना चाहते हो वो करो। Years of patterns of sicknesses are going to be broken today in the name of Jesus. कई सालों से दोहराते रहने वाली बीमारियां आज टूटेंगी यीशु के नाम में। Amen. Because Holy Spirit is going to come in His power. क्योंकि पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य में आएगा। And many believers have not even known what it is to experience the power of God. Because we are so used to a normal church service. और बहुत सारे विश्वासियों को तो अनुभव भी नहीं है कि परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव कैसा होता है, क्योंकि हमें आदत है एक सामान्य कलीसिया की सभा की। But when Jesus comes, लेकिन जब यीशु आता है, demons cannot stay. दुष्ट आत्माएं ठहर नहीं सकती हैं। Demons tremble in the presence of the King Jesus. दुष्ट आत्माएं कांपती हैं उस राजा यीशु की मौजूदगी में। Amen. आमेन। So I warned you. मैंने आपको चेतावनी दे दी है। Amen. आमेन। And when the power of God will hit some of you, और जब परमेश्वर का सामर्थ्य आप लोगों को छुएगा, your life is going to turn upside down. आपकी जिंदगी उलट-पुलट हो जाएगी। Your sleeping patterns are going to change. आप जिस रीति से सोते हैं वो बदल जाएगा। Your eating patterns are going to change. आपका खाने की रीति बदल जाएगी। Your mood patterns are going to change. आपके मूड के जो पैटर्न है वो बदल जाएंगे। Amen. Because the Lord will take over. क्योंकि प्रभु उस पर नियंत्रण कर लेगा। I believe that God will give us encounters like you have never had before. मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर हमें ऐसे साक्षात्कार दे जैसे कभी ना हुए हो हमारे। You know, it's amazing. People come to church and we love people, so we want to hug them and we want to be nice to them. और ये खूबसूरत है कि लोग कलीसिया आते हैं, हम उनसे प्यार करना चाहते हैं, इसलिए उनको गले लगाते हैं, उनसे अच्छी तरह से बात करते हैं। But church is not into hospitality business. लेकिन कलीसिया हॉस्पिटैलिटी के व्यवसाय में नहीं है। A powerless love is useless. शक्तिहीन प्रेम निकम्मा है। Can I say that again? दोबारा कहूँ? A powerless love is useless. शक्तिहीन प्रेम निकम्मा है। A person who is coming with cancer and doctors have told him that he'll die in some days. एक व्यक्ति जो कैंसर के साथ आया, डॉक्टर्स ने कहा कि कुछ समय में वो मर जाएंगे। He's coming to be free from cancer. He is not coming for a hug. He's coming to be free. वो कैंसर से आजाद होने के लिए आ रहा है, गले लगने के लिए नहीं आ रहा है। Amen. It's good we love people. We want to be nice to them. We want to be. It's amazing. अच्छा है हम लोगों से प्यार से बात करें, उनको गले लगाएं, वो सब अच्छा है, बहुत अच्छा है। Even the hospitality industry is nice and they are much nicer than us. हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी है और हमसे ज्यादा अच्छी है। A powerless church is an insult to Jesus. Come on. एक शक्तिहीन कलीसिया यीशु के लिए तौहीन है। I'll say it again. मैं दोबारा कहता हूँ। A powerless church is an insult to Jesus. एक शक्तिहीन कलीसिया यीशु के लिए तौहीन है। Jesus said, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. क्योंकि यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और नरक के फाटक उसके विरोध में प्रबल नहीं होंगे। Jesus didn't say I will build my church and they will be nice. यीशु ने ये नहीं कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और वो अच्छे होंगे। Jesus said I will build my church and my church will trample the powers of hell because I will build it. यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और मेरी कलीसिया नरक की सामर्थ्य को नाश करेगी क्योंकि मैं उसको बना रहा हूं। Amen. Amen. Now we have learned, read, focused on the love of God and it's powerful, but the Lord just wants us that we should put our trust in His power. Amen. और हमने परमेश्वर के प्रेम के बारे में सीखा और सुना और समझा और बहुत अच्छा है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम सीखें उसकी सामर्थ्य पर अपना भरोसा डालना। For God so loved the world that He gave Jesus. क्योंकि परमेश्वर ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि यीशु को दे दिया।
But for even Jesus to start his ministry, he had to be anointed with Holy Ghost and with power. लेकिन यीशु को भी अपनी सेवकाई शुरू होने के लिए पवित्र आत्मा और शक्ति का, सामर्थ्य का अभिषेक चाहिए था, उसका बपतिस्मा चाहिए था. Amen? आमेन. Think about that. इसके बारे में सोचें. Without the power of God, Jesus did not start his ministry. परमेश्वर की सामर्थ्य के बिना यीशु ने भी अपनी सेवकाई की शुरुआत नहीं की. You know, today in 21st century, church is turning into a counseling center. 21वीं सदी की कलीसिया समझाने के लिए काउंसलिंग का सेंटर बन चुकी है. Can I tell you, you cannot counsel demons, you need to cast them out by the power of the Holy Spirit. क्या मैं आपको बता सकता हूँ, दुष्ट आत्माओं को आप समझा कर के नहीं ठीक कर सकते, आपको उनको खदेड़ना पड़ेगा यीशु के नाम में, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा. Amen? आमेन. If we want to counsel demons, we want to give them names. आज हम दुष्ट Oh, आत्माओं it's की a psychological problem. Oh, it's this disorder. It's that disorder. It's a demon. Cast it out by the power of the Holy Spirit. आज हम दुष्ट आत्माओं को काउंसिल करना चाहते हैं, उनको अलग अलग नाम देना चाहते हैं कि मानसिक रूप की ये बीमारी है, वो समस्या है, वो दुष्ट आत्मा है, उसको खदेड़ कर बाहर निकालो. Amen? Jesus said, behold, I give you authority over all the power of the enemy. यीशु ने कहा, देखो मैं तुम्हें सामर्थ्य देता हूं दुश्मन की सारी शक्तियों के ऊपर. Amen? Nothing against counseling. काउंसलिंग के विरोध में नहीं हूं मैं. You do that, praise God. अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है. But there are some things लेकिन that कुछ will बातें not हैं, leave those people कुछ चीजें हैं जो उन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ेंगी until they are expelled by a higher power. जब तक एक ऊंचे अधिकार की सामर्थ्य के द्वारा वो चीजें खदेड़ी ना गई, बाहर धकेली ना गई. You cannot counsel somebody who's dying of cancer. अगर कोई कैंसर से मर रहा है आप उसको काउंसिल नहीं कर सकते. It's a direct confrontation between two powers. वो एक सीधा आमना सामना है दो शक्तियों के बीच में. Amen? आमेन. And how many people know और कितने लोग जानते हैं the greatest power is in the name of Jesus? कि सबसे बड़ी सामर्थ्य यीशु के नाम में है. Amen? The Bible says that the name of Jesus is above every name. बाइबल कहती है यीशु का नाम हर एक नाम से ऊपर है. There are so many believers got saved but are still hidden, still bound with hidden sins, not able to break the cycle. Why? Because they have still not encountered the raw power of God. बहुत से विश्वासी हैं जिन्होंने उद्धार तो पा लिया लेकिन फिर भी छुपे हुए जीवन में वो पाप के बंधन में बंधे हैं जिससे वो बाहर नहीं आ पा रहे क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की उस सामर्थ्य का अनुभव नहीं किया. But when a higher power is applied, every other power will bow down and leave in Jesus' name. लेकिन वो जो सबसे बड़ी सामर्थ्य है जब उसका आमना सामना होता है तो हर एक निचली सामर्थ्य को छोड़कर जाना पड़ता है यीशु के नाम में. Amen. Praise God. You are filled with the Holy Spirit and you speak with tongues. प्रभु का धन्यवाद हो आप पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य भाषा में बोलते हो. The Spirit of the Lord did not come upon you just so that you can speak with tongues. लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर सिर्फ इसलिए नहीं आया कि आप अन्य भाषा बोलो. Jesus went to the temple. He was given a book to read. He opened the scriptures to Luke 4:18. And Luke 4:18 says, he said that the Spirit of the Lord God is upon me. और यीशु जब मंदिर में गया उसको किताब दी गई पढ़ने के लिए और जो लूका 4:18 में लिखा है उसने वो आयत खोली पुराने नियम में और पढ़ने लगा और कहा कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है. Can I say this? Please don't feel bad. I'm not targeting anybody. I'm not saying for anybody. Can I say this? And I am included in that. मैं किसी पर निशाना साधते हुए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसमें शामिल हूँ इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ. It's a shame if we have to take our kids to counselors if we are filled with the Holy Spirit. ये शर्मिंदगी की बात है अगर अपने बच्चों को हमें काउंसलर के पास लेके जाना पड़े अगर हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं तो. Not knowing that we carry the resurrection power in us. ये ना जानते हुए कि मुर्दों को जिंदा करने का सामर्थ्य हमारे अंदर बैठा है.
but we are not able to help them. लेकिन हम उनकी मदद नहीं कर पाते। I pray that we will come out of a powerless Christianity. मैं प्रार्थना करता हूं कि इस शक्तिहीन मसीहत से हम बाहर आ जाएं, Where we are satisfied with a nice Sunday service, we go back and live the way we want from Monday till Saturday, and then again come on Sunday thinking I've done my part. जहां पर हम खुश हैं एक अच्छी संडे सभा से, फिर सोमवार से शनिवार तक अपनी जिंदगी जैसी जीनी है वैसे जी लें और सोचें हमने अपना काम कर दिया। You want devil to obey you? क्या आप चाहते हैं कि शैतान आपकी बात सुने और माने? Yes. हाँ, The Bible says, बाइबल कहती है first पहले submit to God, पहले परमेश्वर के अधीन समर्पित हो जाओ, then resist Satan, तब शैतान का सामना करो and then और he तब- will flee away from you. और तब वो तुमसे भागेगा। There is no resisting without submitting. शैतान का सामना करने का मौका नहीं है जब आप परमेश्वर के अधीन समर्पित नहीं होंगे। He won't obey you. वो ऐसे नहीं मानेगा। Demons know. दुष्ट आत्माओं को पता है। 7 sons of Sceva. कीवा के 7 बेटे थे। They said, उन्होंने कहा Jesus, in the name of Jesus that Paul preaches, उस we command you to come out. उस यीशु के नाम में जिसका प्रचार पौलुस करता है, हम तुझे आदेश देते हैं, निकल आ। The demon said, दुष्ट आत्मा ने बोला Jesus we know, यीशु को तो हम जानते हैं and Paul also we know. और पौलुस को भी हम जानते हैं, But who the heck are you? लेकिन तुम किस खेत की मूली हो? Command us. उसको आदेश दिए कि हमें आदेश दे सको। Yeah, that's what they said. और उन्होंने यही बोला। And the Bible says they overpowered them and they beat them black blue and they came running, blood oozing out of their body. और कहा कि दुष्ट आत्मा उन पर हावी हो गई और उन सबको बहुत पीटा और खून बहते हुए फटे हाल वो बाहर निकले भागते हुए। It's time समय to है, start walking समय है कि हम चलना शुरू कर दें, as the Lord wants His church to walk. जैसा प्रभु चाहता है कि उसकी कलीसिया चले। Amen. आमीन। Can I tell you there is no sickness क्या मैं बता सकता हूँ कोई ऐसी बीमारी नहीं है that will not bow before the name of जिसके Jesus? घुटने यीशु के नाम के आगे ना टिके। I don't care. It's a terminal thing. What doctors say, it is not possible. The science says nobody has been healed. It doesn't matter. मुझे परवाह नहीं है अगर वो जानलेवा बीमारी है, डॉक्टर्स ने क्या कहा है और कहते हैं, मेडिकल साइंस कहती है आज तक कोई इससे ठीक नहीं हुआ, मुझे परवाह नहीं है इसकी। Jesus is here to set you free. यीशु यहाँ मौजूद है आपको आजाद करने के लिए। I said Jesus is here to set you free. मैंने कहा यीशु यहाँ मौजूद है आपको आजाद करने के लिए। Amen. And Amen. can I tell you, a life of freedom is an amazing life. और मैं क्या बता सकता हूँ आपको ये बात, आजादी की जिंदगी बहुत अद्भुत है। It's a shame if we have to go to the world to get help. The world is supposed to come to the church for help. शर्मिंदगी की बात है अगर कलीसिया दुनिया के पास जाए मदद मांगने के लिए, दुनिया को कलीसिया के पास आना चाहिए मदद के लिए। Amen. Amen. I want you to open Psalm 66:3. This is the scripture that came to me when that word came. मैं चाहता हूँ भजन 66 उसका 3 आप खोलें अपनी बाइबल में। ये वो वचन है जो मेरे पास आया जब परमेश्वर ने मुझसे बात की। 66. भजन 66 Let's read it together. Ready? हम साथ में पढ़ेंगे। Okay. Say to God, how awesome are your works. परमेश्वर से कहो कि तेरे काम क्या ही भयानक है। Through the greatness of your power, your enemies shall submit themselves to you. तेरी महासामर्थ्य के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे, तेरे अधीन समर्पित होंगे। That addiction that your कौन? children are bound with, वो बुरी लत जिसमें आपके बच्चे फंसे हैं। the enemy isn't going to let them go just like that. दुश्मन उनको ऐसे नहीं छोड़ेगा। It's by the greatness of God's power, लेकिन those demons will surrender and leave. परमेश्वर की महासामर्थ्य के अधीन आकर के वो दुष्ट आत्माएं घुटने टेकेंगी और छोड़ेंगी। Amen. आमीन। Jesus said, behold, I give you power
to trample on snakes and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. यीशु ने कहा, देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोनने का अधिकार देता हूं और दुश्मन की सारी सामर्थ्य के ऊपर अधिकार देता हूं, किसी बात से तुम्हें कोई हानि नहीं होगी. Come on, say this. Lord, this is my day. मेरे साथ कहें, प्रभु आज मेरा दिन है. I'm going to encounter your power. मैं आपकी सामर्थ्य का अनुभव करूंगा. Amen. आमेन. The day the church will taste the power of God, we will not be satisfied with any cheap entertainment. जिस दिन कलीसिया ने परमेश्वर की सामर्थ्य को चख लिया, किसी सस्ते मनोरंजन से हम खुश नहीं होंगे. Are you getting it? समझ रहे हैं? Man of God Reinhard Bonnke used to say, when the church has no power, they want to do parties, soccer games, something to bring people. और रेनाल्ड बॉन्की परमेश्वर के एक जन वो कहते हैं, जब कलीसिया में सामर्थ्य ना हो तो वो पार्टीज और सॉकर गेम्स और ये सब करना चाहते हैं कि लोगों को लुभा के ला पाएं. But can I tell you, there are people dying and perishing in the world, they do not have the answer. And the Lord is the answer. लेकिन मैं क्या कुछ बता सकता हूँ, दुनिया में लोग हैं जो मर रहे हैं जिनके पास जवाब नहीं है, लेकिन प्रभु के पास जवाब है. Jesus said, the Spirit of the Lord God is upon me because He has anointed me to preach the gospel, to set the captives free. यीशु ने कहा, परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है बंधुआई में पड़ों को आजाद करने के लिए, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, अंधों की आंखों को खोलने के लिए. It is the anointing that is going to set the people free. वो अभिषेक है जो लोगों को आजाद करेगा. Amen. आमेन. If the devil has been harassing you in an area, you need to come to a place where you allow the power of God to directly confront that thing that is harassing you. अगर शैतान आपको किसी क्षेत्र में सताता आया है तो ये समय है कि आप परमेश्वर की सामर्थ्य के अधिकार के द्वारा उस दुष्ट का सामना करें जिस क्षेत्र में वो आपको सताता आया. I just feel so strong that years of addictions, मैं बहुत भारी रूप से महसूस कर रहा हूँ कि सालों से जो बुरी लतें जिनमें फंसे थे, patterns of sicknesses, बीमारी के जो पैटर्न, जो साइकिल्स थे, they will be broken today in Jesus' वो name. आज टूटेंगे यीशु के नाम में. Amen. You will go Amen. back free. आप आजाद होकर यहाँ You'll से go जाएंगे. back free. आप आजाद होकर के जाएंगे यहाँ से आज. So many people are today bound by cancer. बहुत से लोग यहाँ जो कैंसर पर हैं. You know what they do? You go to doctors, पता है वो क्या करते हैं? डॉक्टर्स के पास जाते हैं. they say do radiation, right? वो कहते हैं रेडिएशन थेरेपी होगी. So they throw some waves तो कुछ वेव्स है जो वो फेंकते हैं उससे, and there is a crazy side effect. और उसका बहुत बुरा असर होता है. And the people do it because they do not have any other solution. और लोग इसलिए करवाते हैं कि और कोई समाधान है नहीं है. But can I tell you, there is another solution. लेकिन क्या मैं बता सकता हूँ एक और समाधान है. The word of God is light. परमेश्वर का वचन प्रकाश है. It's the best radiotherapy without any side effect. सर्वोत्तम रेडियोथेरेपी है जिसकी कोई हानि नहीं है. Amen. आमेन. Amen. For Jesus to set people free, God had to anoint him with Holy Spirit and with power.
इसलिए कि यीशु लोगों को आजाद करवा सके, परमेश्वर को यीशु पर अभिषेक उंडेलना पड़ा, पवित्र आत्मा और सामर्थ्य का। Imagine how would you have felt if Jesus would have come, just gave a nice sermon on the mount and just said, I love you guys. कल्पना कीजिए कैसा होता अगर यीशु उस पहाड़ पर जब वो प्रचार करते, एक अच्छा प्रचार करते और कहते मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। He would have been just like another Baba, तो एक बाबा से कम नहीं थे फिर वो किसी भी। saying nice words. Bible says that the kingdom of God is not just talking, it is the power of God. If the kingdom of God is here today, his power will manifest in Jesus name. बाइबल कहती है परमेश्वर का राज्य सिर्फ बातें नहीं है लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य है। अगर परमेश्वर का राज्य यहाँ मौजूद है तो आज केवल बातें नहीं लेकिन उसका सामर्थ्य भी होगा। Amen. Because the kingdom of God is not just talking. क्योंकि परमेश्वर का राज्य केवल बातें करना नहीं है। Whenever the kingdom of God manifests, the power of God manifests. जब कभी परमेश्वर का राज्य प्रकट होता है, परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होती है। Amen. And the Lord will set people free परमेश्वर लोगों को आजाद करेंगे from years of bondage. उन सालों से जिन वो बंधनों में थे। One encounter with the power of the Lord and it is settled. परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ एक बार सामना हो गया और मुद्दा खत्म। Amen. Amen? The Spirit of the Lord is here. परमेश्वर का आत्मा मौजूद है। People will be set free from demons. लोग आजाद किए जाएंगे दुष्ट आत्माओं से। See, I don't want to preach any sermon. मैं कोई प्रचार नहीं करना चाहता आज। I just pray that you will encounter, you will know what it means to belong to Him. लेकिन मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आपका सामना हो उसकी सामर्थ्य के साथ, ताकि आपको पता लगे कि उसका कहलाने का अर्थ When क्या we है। say we are believers, we believe in Jesus, what does that mean? जब हम कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, तो उसका अर्थ क्या है? We are not powerless people, हम सामर्थ्यहीन लोग नहीं हैं, anointed by the Spirit of the Lord. लेकिन वो लोग जिन पर परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक है। Amen. आमेन। And can I tell you, just because it's written in the Bible, और ये बताओ, लेकिन and you can quote it, सिर्फ इसलिए कि बाइबल में लिखा है और आपको पता है और आप बोल सकते हो, nothing changes उससे कुछ नहीं बदलता until you make it yours. जब तक जो आप कह रहे हो वो आपका ना हो That's चुका what हो। sons of Sceva said. They quoted Paul. They said, in the name of Jesus, whom Paul preaches. यही तो स्कीवा के बेटे कर रहे थे। वो पौलुस जो कहता था वो कह रहे थे कि उस यीशु के नाम में जो पौलुस प्रचार करता है। You know, we had gone to Karnal. I think it's years before. I think maybe 12 years, and we had gone to Karnal. लगभग 12 साल पहले की बात है, हम लोग करनाल में थे। And so I was invited to worship. It was like a healing meeting. और एक चंगाई सभा थी जहाँ पर मुझे बुलाया गया आराधना करने के लिए। And the moment I went to the stage and I just held the guitar, और जैसे ही I मैं strummed the first chord, स्टेज पर गया, मैंने गिटार पकड़ा और पहला कॉर्ड बजाया, my spiritual eyes opened up and I saw this huge hand which came down from above. मेरी आत्मिक आंखें खुल गई और मैंने देखा एक बहुत बड़ा हाथ आकर मेरे सर पर ठहर गया And I was gone. और मुझे नहीं पता, मैं खो गया था। And when I came back to my senses, और जब वापस मैं होश में आया, there were like 200 people manifesting, getting free. लगभग 200 लोग थे जो जमीन पर लौट रहे थे, दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल रही थी। It's your Father's desire that we all will walk in absolute freedom. ये आपके पिता की चाहत है कि हम में से हर कोई संपूर्ण आजादी में जिए। Amen. And we walk in the light as He is in the light. और हम उस प्रकाश में जिए जैसे कि वो प्रकाश में मौजूद है।
Amen. आमेन। He doesn't want any one of us to live in darkness. वो नहीं चाहता हम में से कोई भी अंधकार में He जिए। doesn't want any of us to be bound by certain areas in our life. वो नहीं चाहता हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में बंधे हों। He wants you and me to live free. वो चाहता है कि आप और मैं आजाद होकर जिएं। Jesus wants to give you that freedom today. यीशु आपको वो आजादी देना चाहता है आज। Amen. आमेन। So that you are free to worship Him whenever you want. You are free to read the Word as much as you want. You are free to pray as much as you want. ताकि आप आजाद हों उसकी आराधना करने के लिए जितना आप चाहें, उसका वचन पढ़ने के लिए जितना आप चाहें, उसके साथ समय बिताने के लिए जितना आप चाहें। Are you ready, church? क्या आप तैयार हो कलीसिया? In short time we are going to pray. थोड़े ही समय में हम प्रार्थना करेंगे। I pray that you would just completely surrender and submit your life. और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पूरी तरह से अपने जीवन को समर्पित कर दें। His power is going to come. और उसकी सामर्थ्य उतर आएगी। You know, the fire always falls on the sacrifice. क्या आप जानते हैं आग हमेशा जहां बलिदान है वहां उतरती है। Don't say, Pastor, we are in New Testament. ये मत कहना पास्टर हम तो नए नियम में हैं। In the New Testament, Romans 12:2 says, offer your bodies as a living sacrifice. हाँ, नए नियम में रोमी 12:2 वचन कहता है अपनी देह को जीवित बलिदान के रूप में चढ़ा दो। Not only He wants to set us free through us, He wants to set others free. वो केवल हमें ही आजाद नहीं करना चाहता लेकिन हमारे द्वारा औरों को आजाद करना चाहता है। You know, if you read in the Bible, in every time and era, you know what God does? He raises up deliverers. You read the book of Judges, and it's still happening. God is still raising deliverers who would deliver others, people who are anointed, who are filled with the power of the Holy Spirit. और ये हमेशा से होता रहा है। परमेश्वर ने अलग अलग पीढ़ियों अलग अलग समयों में उन छुटकारा देने वालों को उठा करके खड़ा किया है जो उसके लोगों को छुटकारा दें। और आज भी परमेश्वर ऐसा करता है, वो अपने लोगों को अभिषेक देता है ताकि वो औरों को छुटकारा दे पाए। Amen. By the greatness of His power, His enemies will submit themselves. उसकी महानता के उसकी सामर्थ्य की महानता के द्वारा उसके दुश्मन उसके आगे घुटने टेकेंगे। Amen. Amen. You know what is the source of God's power? क्या आप जानते हैं परमेश्वर की सामर्थ्य का क्या स्रोत है? His word. उसका वचन। In the beginning, शुरुआत में when there was nothing, जब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, there was the word. वचन था। And through God, through His word, He created everything. और अपने वचन के द्वारा परमेश्वर ने सब कुछ बना डाला। You know, when we were in Moti Nagar, जब हम मोती नगर में थे, there was one girl who was a believer for many years. एक बहन थी जो विश्वासी थी बहुत समय से, कई सालों से, Many years. बहुत सालों से। Every night, a demonic spirit used to come and sexually molest her for years. और हर रात को एक दुष्ट आत्मा आकर के उसका यौन शोषण करती थी सालों तक। And then we got to know about it. We prayed for that sister. और जब हमें पता लगा हमने प्रार्थना किया, She got free. वो आजाद हो गई। Amen. 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 And then she told her sister. उसने अपनी बहन को बताया। Her sister came in. उसकी बहन आई And she was just sitting there during worship. Those demonic spirits left her. Nobody prayed for her. Just the
raw power and the presence of the Holy Spirit, and she was delivered. और जब आराधना हो रही थी तो वो बैठी हुई थी और किसी ने उसके लिए प्रार्थना नहीं की, लेकिन परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का सामर्थ्य वहाँ मौजूद था और वो आज़ाद हो गई, वो दुष्ट आत्मा से छोड़ के चली गई. We don't want to believe this, but the reality is this: so many believers are still bound by demons. हम इसको मानना नहीं चाहते, लेकिन हकीकत ये है कि बहुत से विश्वासी आज भी दुष्ट आत्मा से बंधे हैं. Amen. And the Lord wants to completely set His people free. और परमेश्वर चाहता है कि अपने लोगों को पूरी तरह आज़ाद कर दे. आमीन. Now, if you're a believer, if you believe in Jesus, your spirit man belongs to you. You can never be possessed. अगर आप विश्वासी हैं और यीशु पे विश्वास करते हैं, आपका आत्मिक मनुष्य पूरी तरह ये परमेश्वर का है. But you can still be oppressed. और शैतान कभी भी आपके आत्मा पर मालिक नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आपके जीवन के क्षेत्र है जहां पर वो आपको प्रभावित कर सकता है, आपको दबाव में ला सकता है. Can oppress believers in their thoughts. वो शैतान विश्वासियों को उनके विचार में सता सकता है, dreams in their उनके bodies. सपनों में, उनके शरीर में सता सकता है. Can you put Acts 10:38? The Bible says how God anointed Jesus of Nazareth with Holy Ghost and with power. प्रेरितों के काम 10:38 बाइबल कहती है कैसे परमेश्वर ने यीशु का अभिषेक किया पवित्र आत्मा और सामर्थ्य के द्वारा. If Jesus, अगर यीशु who is God in flesh, जो परमेश्वर देहधारी हुआ, the Word of God, जो परमेश्वर का वचन है, if He needed to be anointed by Holy Ghost and with power, how much more you and me? अगर उसको आवश्यकता थी कि पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से उसका अभिषेक हो, तो कितना आपको और मुझे भी है. You know, one thing that is happening now in 21st century church is the entire church is falling for the persuasive words of human wisdom. और 21वीं सदी की कलीसिया की जो समस्या है वो ये है कि सारी की सारी कलीसिया मनुष्य की बुद्धि के लुभावने शब्दों के लिए गिर रही है. Any preachers going to learn how to stir the crowd. What I'm saying is, the answer is not nice sermons. The answer is the power of God. बहुत से Amen. प्रचारक जो ये प्रशिक्षण दे रहे हैं कि कैसे लोगों को लुभाना है, उनको उत्साहित करना है, प्रोत्साहित करना है, लेकिन जो उत्तर है एक सुहावने संदेश में नहीं है, उत्तर परमेश्वर की शक्ति में, उसकी सामर्थ्य में है. When Jesus was anointed by Holy Spirit in power, Bible says He went around doing good and healing all those who are oppressed by the devil. बाइबल कहती है जब यीशु का अभिषेक हुआ आत्मा और सामर्थ्य के द्वारा, वो अच्छे काम करता गया और उन सब को चंगा करता गया जो शैतान के द्वारा सताए हुए थे. There are many oppressed believers. कई ऐसे विश्वासी हैं जो शैतान के द्वारा And सताए हुए हैं. every oppression of devil in your life breaks today in the name of Jesus. और आपके जीवन से शैतान का हर एक सताव आज टूटता है यीशु के नाम में. Amen? आमीन. Not called to be in oppression, हम सताव में जीने के लिए नहीं बुलाए गए, called to live in freedom. हम आजादी में जीने के लिए बुलाए गए हैं. Remember last Sunday I was sharing, in the night as I was just worshiping the Lord, this picture came, and I saw this picture of a man but face of a lion and a sword in his hand. और पिछले रविवार मैं आपको बता रहा था कैसे जब मैं आराधना कर रहा था, ये तस्वीर मेरे सामने आ गई जो एक मनुष्य है जिसका शेर का चेहरा है, उसके हाथ में एक तलवार है दोधारी. It's from Psalm 149 where it says और वो that, भजन 149 से है जहाँ लिखा है that God's people कि परमेश्वर के लोग will have high praises in their mouth उनके मुंह में वो ऊंची स्तुति होगी and a double-edged sword in their hand. और एक दोधारी तलवार होगी. Amen? आमीन. Not complaints, not oppression, but high praises. उनके मुंह में कंप्लेंट्स नहीं होंगी लेकिन ऊंची स्तुति होगी. And I just pray that we will become that center of deliverance where people can come Amen. Amen. and be free. Amen. और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हम वो छुटकारे के केंद्र हों जहाँ पर लोग आएं और आज़ाद हो सकें.
There are so many people whom the doctors have given up. बहुत से लोग हैं जिनके लिए डॉक्टर्स ने हार मान ली है. Incurable cancers, लाइलाज कैंसर्स, incurable diseases. लाइलाज बीमारियां. But you know what the Bible says? और पता है बाइबल क्या कहती है? Bless the Lord, O my soul. परमेश्वर को धन्य क्या है मेरे प्राण, Forget not his benefits, उसके उपकारों को मत भूलना, for he forgives all our क्योंकि iniquities वो तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा करता है and he heals all our sicknesses. और वो तुम्हारे सारे बीमारियों को चंगा करता है. Are you sure, God? पक्का परमेश्वर? Do you heal all our sicknesses? क्या आप हमारी सारी बीमारियों को चंगा करते हो? But the medical science says these sicknesses cannot be healed. लेकिन मेडिकल साइंस कह रही है कि इन बीमारियों को चंगा नहीं किया जा The सकता. doctors say there is no case study of one person getting healed from this condition. डॉक्टर्स कह रहे हैं इस समस्या से एक भी व्यक्ति नहीं है जो मालूम हो कि ठीक हुआ. He heals all the sicknesses. वो हमारी सारी बीमारियों को चंगा करता है. Amen. आमेन. See what is happening. The word of the Lord is saying that God heals all our sicknesses. हो क्या रहा है? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर हमारी सारी बीमारियों को चंगा करता है. But our experience falls short of the word of God. लेकिन हमारा जो अनुभव है वो परमेश्वर के वचन से मिलता नहीं है. So rather than bringing the word of God down to our level, we'll pray, Father, upgrade our experience to the level of your word. तो परमेश्वर के वचन के स्तर को नीचे गिराने की जगह हम क्यों ना ये प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे अनुभव को अपने वचन के स्तर पर ले जाओ. Lord, we do not know what the world says, but it's your word that says you heal. God heals all the sicknesses. प्रभु हमें नहीं परवाह दुनिया क्या कहती है, लेकिन आपका वचन ये कहता है कि आप हमारी सारी बीमारियों को चंगा करते हैं. Can you all stand up? आप सब खड़े हो जाएं. I just believe he wants to do something. मैं विश्वास करता हूँ वो कुछ करना चाहता है. Don't resist the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का विरोध ना करें. Just yield to what he's doing. जो वो कर रहा है उसके अधीन समर्पित हो जाए. Just yield to what he will do. समर्पित हो जाए जो वो कर रहा है उसमें. Holy Spirit, पवित्र आत्मा, Spirit of the living God, जीवित परमेश्वर की आत्मा, come in your power. अपनी सामर्थ में आ जाएं. Come in your power. अपनी सामर्थ में आ जाएं. Come in your power, Lord. अपनी सामर्थ में आ जाएं. Set your people free. अपने लोगों को आजाद करें. Every demons behind depression, हर एक दुष्ट आत्मा जो डिप्रेशन के पीछे, every demons of witchcraft, come out right now in Jesus' name. जादू टोने के पीछे जो हर एक दुष्ट आत्मा है बाहर निकल आओ इस समय यीशु के नाम में. Right now. इसी समय Leave these people. इन लोगों को छोड़. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु. In Jesus' name, यीशु के नाम में every demonic spirit हर एक दुष्ट की आत्मा that has bound these people, जिसने इन लोगों को बांध कर रखा, every spirit behind sicknesses and diseases, बीमारियों के और रोगों के पीछे जो आत्माएं हैं, every spirits of infirmity, हर एक कमजोरी की आत्मा, every spirits behind allergies, एलर्जीज के पीछे जो आत्माएं हैं, every spirits behind nightmares, हर वो दुष्ट आत्मा जो बुरे सपनों के पीछे हैं, come out right now in Jesus' name. बाहर आ जाओ इस समय यीशु के नाम में. In the name of Jesus, यीशु के नाम में right now, इस ही समय come out. बाहर आ जाओ. Let these people go. इन लोगों को छोड़ दो In Jesus' name. यीशु के नाम में. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, let him come. Yes, Holy Spirit. पवित्र आत्मा Let your mighty power come, Lord. की महान सामर्थ्य उतर आए. Come like a wave. एक लहर की तरह Yes, right now. समय पिता. Be free. आजाद हो जाओ. Be free. आजाद हो जाओ. Be free. आजाद हो जाओ. Be free आजाद हो जाओ right now. इसी समय In Jesus' name. यीशु के नाम में. In Jesus' name. यीशु के नाम में. In Jesus' name. यीशु के नाम. Lord, heirs of addictions, प्रभु सालों से जो चल रही बुरी लतें हैं,
be broken right now in Jesus' name. इसी समय वो टूट जाए यीशु के नाम में, Right now in Jesus' name. इसी समय यीशु के नाम। There is a boy here and you are bound by tobacco. एक लड़का है जो तंबाकू की लत में है। You feel guilty, you are a believer, the Lord is setting you free right now. आपको दोष महसूस होता है, आप विश्वासी हैं और प्रभु आपको आजाद कर रहे हैं इस समय, Right now. इसी समय Just receive your deliverance. अपनी छुटकारे को ग्रहण करें। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु। Yes, Lord. Father, धन्यवाद पिता। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, do what you want to do. जो आप करना चाहते हैं करें। Set your people free. अपने लोगों को आजाद करें, Set your people free. अपने लोगों को आजाद करें, Set your people free. अपने लोगों को आजाद करें। Yes, Lord. हाँ प्रभु, Every unclean spirit, हर एक अशुद्ध आत्मा come out of them in Jesus' name. बाहर निकल जाओ इस समय यीशु के नाम में। Come out of them in Jesus' name. बाहर निकल जाओ इस समय। We break your power over them हम तुम्हारे सामर्थ्य को तोड़ते हैं इस समय इनके जीवनों से, in Jesus' name. यीशु के नाम में, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Yes, Lord. Come on. Don't look here and there. Engage with Him. Just close your eyes. Let Him completely set you free right now. इस समय यहाँ वहाँ मत देखना, लेकिन परमेश्वर से बात करें ताकि वो आपको पूरी तरह आजाद करे। More Holy Spirit. हाँ पवित्र आत्मा। Yes, Lord. हाँ प्रभु, Yes. हाँ प्रभु। His power is manifesting. उसकी सामर्थ्य समय यहाँ प्रकट होती है। Increase it, Lord. उसको और बढ़ा दे प्रभु, Increase it, Lord. उसको और बढ़ा दे प्रभु, Increase it, Lord. और बढ़ा दे प्रभु, Increase it, Lord. और बढ़ा दे प्रभु। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु। Oh, Sandana. Tikaralaba sendro. धन्यवाद प्रभु। Rebo shata katara bom braga shate. Lem braga shate koram braga shate terebe. Tiram braga deto raba shandegede. Rishakam braga shetotoro. Come out in Jesus' name. बाहर निकल आओ इसी समय यीशु के नाम में। Yes, come out. बाहर निकल आओ, Come out. Come out. Come out. बाहर निकल आओ। Yes. Bring this man. Thank you, Lord Jesus. व्यक्ति को लेकर आए। Let him go, devil. शैतान छोड़ Let him उसको। go. छोड़ उनको इस समय In Jesus' name. यीशु के नाम में, In Jesus' name. यीशु के नाम, In Jesus' name. यीशु के नाम। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु, Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु, Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। Come out in Jesus' name. यीशु के नाम में Come out in Jesus' name. बाहर निकल आओ, यीशु के नाम में Come out in Jesus' बाहर name. निकल आओ, यीशु के नाम में। Let him go. छोड़ दो इनको, Let him go. छोड़ दो इनको। Leave his family. ये परिवार को छोड़ो। In the order you entered him, जिस क्रम में तुमने प्रवेश किया, I command you to let him go. मैं आदेश देता हूँ उन्हें छोड़ो इसी समय। Come out of him बाहर आ जाओ उनसे and never enter him. और दोबारा कभी ना प्रवेश करो, Jesus' name. यीशु के नाम में, In Jesus' name. यीशु के नाम में। All of you, सब के सब let him go. उन्हें छोड़ दो। Let him go. उन्हें छोड़ दो, Jesus' name. Let him go. छोड़ दो उन्हें। All of you, सब out of की him. सब से बाहर, Out of him. से बाहर। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु, Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Come on, the Lord is setting people free. Don't be distracted. Say, this is my day. Lord, I want to encounter your power. प्रभु लोगों को आजाद कर रहा है, जहाँ वहाँ ना देखिए, लेकिन परमेश्वर से कहें ये मेरा दिन है, मैं आपकी सामर्थ का अनुभव Lord, चाहता हूँ। I want to encounter your power. प्रभु मैं आपकी सामर्थ का I want to अनुभव चाहता encounter. हूँ। Yes, his power is here. हाँ, उसकी सामर्थ यहाँ मौजूद Yes, है। Lord, right now. हाँ प्रभु, इसी समय, Right now. इसी समय पिता, Right now. इसी समय प्रभु, Be free in Jesus' name. यीशु के Be नाम में free in आजाद हो Jesus' जाओ। name. यीशु के नाम में Be आजाद हो free जाओ। in Jesus' name. यीशु के नाम में आजाद Be हो free जाओ। in Jesus' name. आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। Yes, Lord Jesus.
Yes, Lord. हाँ प्रभु, Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु। All of you, come out. सब के सब बाहर आ जाओ, Come out of him. बाहर आ जाओ। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Come on. Nobody oppressed by demons is going back the way they came in. You're going back healed. You're going back free in Jesus' name. जो कोई भी दुष्ट आत्माओं का सताया यहाँ आया था, कोई भी वैसे सताव के साथ वापस नहीं जाएगा। आप आजाद किए जाते हैं आज यहाँ यीशु के नाम में। Yes, Lord. Yes, Lord. हाँ प्रभु, Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus. Yes. Come on, give all your attention to Holy अपना Spirit. सारा ध्यान पवित्र आत्मा की ओर लगा दें। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. I command all of you to come out of him now in Jesus' name. तुम सबको आदेश देता हूं निकल आने के लिए इनके साथ, इनसे बाहर, इसी समय Be free आजाद हो जाओ in Jesus' name. यीशु के नाम में। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Come on, lift up your hands. Come on. अपने हाथों को उठाएं। Lord, I pray, let your mighty power may come. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं आपकी महान सामर्थ्य उतर आए। Let your power come, Holy Spirit.